Okay, we are starting with the new topic in probability, that is addition theorem. This we have already done in set theory. The addition theorem is nothing but finding union of two sets, or it can be more than two sets also. So we quickly start with our Venn diagram to understand this theorem. So we have A, we have B. This is the sample space. So A and B are two events which are obviously the subsets of sample space. So if we are going to calculate what is the probability that event A or B occurs, then it is simply represented as A union B also, right? So when I'm talking about A union B, I'm talking about this entire region, right? The region which is enclosed inside, you can say only A. ये वाला जो पार्ट है वो है only A, exactly A, ठीक है? So here I can say this is the region where the sample points which are belonging only to A will be put. This is the region where sample points belonging to only B will be put, and this is the region where sample points belonging to both A and B will be put. So when I'm talking about event A or B, मतलब इसमें A और B और both occurs, सभी काउंट करना है. So this is called as inclusive OR. मतलब A हुआ अकर हुआ तो भी चलेगा, इवेंट B अकर हुआ तो भी चलेगा, सैंपल पॉइंट अगर A इंटरसेक्शन B से आया तो भी चलेगा. So in that scenario, just like set theory, what we'll do is we'll take P of A, entire region A, and with that we are going to club entire region B. So पूरा B आ जाएगा, but the problem is this A intersection B has been counted twice. These sample points have been counted twice. So हम लोग बोलेंगे एक बार वो A के साथ काउंट हो गए और दूसरी बार वो B के साथ काउंट हो गए, तो उसको हम लोग एक बार जो है वो डिलीट कर देंगे. वी आर गोइंग टू डिलीट दैट इंटरसेक्शन रीजन वन. सो P of A plus P of B minus P of A intersection B. That is the main formula in the addition theorem. Apart from this, yes, we can also talk about what is P of A intersection B in words. We can say it is A and B. So if I talk about the region where neither A nor B occurs, okay, so I want to find out what is the probability that neither A nor B occurs. So ना तो A occur होना चाहिए ना तो B occur होना चाहिए. तो ऐसा अगर आया तो that is A dash intersection B dash. What is that region? Where is that region? That region is outside both the circles. So जो भी sample points है जो ना तो इवेंट A में है, that is A के बाहर है, complementary to A dash, ना तो वो इवेंट B में है, B के बाहर है, that is complementary to B dash. तो जो भी sample points है जो ना तो A में है ना तो B में है will come outside in this region. So if I have probability of A dash intersection B dash asked, what I'll do is I'll focus on this region which is outside the both the circles, obviously belonging to the sample space. तो इसको हम लोग by De Morgan's law ऐसा भी बोल सकते हैं. We can write this as P of A union B the whole dash. Okay, so we can say it is P of A union B the whole dash. Obviously this is complementary to A union B. This region is complementary to A union B. इसका इंटरसेक्शन विद A यूनियन B देखने जाओगे तो नल सेट है, बट ये दोनों को मिला देंगे तो दे आर एग्जॉस्टिव. सो सैंपल स्पेस में से अंदर का पार्ट A यूनियन B है, बाहर का पार्ट है A यूनियन B डैश. ओके, नाउ A यूनियन B डैश इज एक्चुअली द टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं. That is correct.
So what I am doing is I want to find out this region का probability. तो A union B dash can be called as a region which is outside A union B. So पूरे सेट का probability अगर हम लोग लेते हैं सैंपल स्पेस का, तो टोटल probability is taken as 1. उसमें से A union B का probability निकाल देंगे. Just like अगर किसी ने आपको पूछा कि probability that A does not occur, okay, probability that A does not occur. तो इस सिचुएशन में वी हैव टू से इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A dash. Probability of A dash. What is A dash? It is complementary to A. तो ये अपना जो सर्कल है that will enclose A, that will have sample points which are belonging to A. What about in the sample space, the sample points which are not belonging to A? They will be belonging to outside region, that is A dash. So probability of A dash will be 1 minus probability of A. So obviously मतलब क्या होगा, सैंपल स्पेस में से A का probability हटा देते हैं, तो रिमेनिंग जो भी बचा है that is belonging to A dash. So probability of A dash is 1 minus probability of A. Probability of A dash intersection B dash is 1 minus probability of A union B. Wordsworth will say this is neither A nor B occurring. This is either A or B occurring. उसमें both वाला automatically counted है. Next, I can go for one more frequently asked region is A occurs but not B. Okay, ऐसा अगर question आ गया, so we are talking probability of A intersection B dash. Okay, what does that mean? Probability of A intersection B dash मतलब हम लोग कौन से रीजन की बात कर रहे हैं? We are talking about region which is inside A but outside B. So this is the region which I was saying earlier, only A region. ये वाला region जो है, जो A के अंदर है but हम लोग उसको B के बाहर लेते हैं, that region is the region of only A. So we can say यहाँ पे वही एलिमेंट्स आएंगे जो A को बिलोंग करते हैं और B को बिलोंग नहीं करते हैं. तो whenever those elements come in the random experiment, we say event A has occurred but not B. Right? So those kind of elements, those kind of outcomes will be belonging to A which are not belonging to B. अगर हमको कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है, probability of A ले लेंगे. We're going to take the entire event A and from that we are going to subtract the intersection region. Intersection नहीं चाहिए. I don't want elements of A which are belonging to event B. वो elements हम लोग को नहीं चाहिए. Right? So A intersection B dash is entire A minus the A intersection B. Okay? So एक ये रीजन है जो ज्यादा पूछते, और एक रीजन है which they put it in words like this. They'll say probability that exactly one of the two occurs. Okay, that is the thing. They say probability that exactly one of the two occurs. मतलब दोनों में से हम लोग को एक ही इवेंट हो रहा है उसका probability find करना है, not both, only one. So I can say this is probability of A occurs but B does not. So उसमें हम लोग को बोलना है A intersection B dash, right? And we can say या तो फिर यूनियन ले लेंगे, या तो फिर B, only B should occur. In that scenario, what we say कि हम लोग B के अंदर जाएंगे but A को नहीं consider करेंगे. So A does not occur but B occurs. So this is the thing when we say exactly one of the two occurs. Okay? So A occur होगा but B occur नहीं होगा साथ में, simultaneously दोनों occur नहीं होगा, या तो फिर खाली B occur होगा साथ में A occur नहीं होगा. So it will be A without B, or it will be B
विदाउट ए, राइट? सो हम लोग बोलेंगे एग्जैक्टली वन ऑफ द टू अकर्स, आइदर ए अकर्स एंड बी डज नॉट, और ए डज नॉट अकर एंड बी अकर्स. अच्छा, इसको ट्रीट करना है एज एक्स यूनियन वाई. सो फॉर्मूला क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई माइनस ये दोनों का इंटरसेक्शन. बट लुक एट द रीजन्स, लुक एट द रीजन्स. एक रीजन जो है वो यहां पे है, इधर से लेके इधर तक, यहां से ए विदाउट बी, और दूसरा रीजन जो है उसमें बी है बट ए नहीं इंक्लूड करना है. तो आपको डायग्राम में ऐसा मिल रहा है, ठीक है, और फिर दूसरा यहां पे मिल रहा है. सो लुक एट द रीजन्स. हम लोग ये रीजन की बात कर रहे हैं और उसका इंटरसेक्शन विद दिस रीजन तो होने ही नहीं वाला है. ये जो रीजन है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये जो रीजन है दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी, उनके बीच में इंटरसेक्शन नहीं आने वाला है. सो अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई माइनस पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, आई एम कॉलिंग दिस रीजन एज एक्स, ए इंटरसेक्शन बी डैश एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी एज वाई, तो उनके बीच में इंटरसेक्शन नहीं आएगा इसलिए वो जीरो है. तो हम लोग के पास बचता है, ये जीरो है, तो बचता है खाली पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस पी ऑफ वाई दैट इज ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी माइनस जीरो. आई रिपीट इट अगेन. बोला है एग्जैक्टली वन ऑफ द टू शुड अकर, तो या तो ए अकर होना चाहिए, बी नहीं अकर होना चाहिए, या तो बी अकर होना चाहिए, ए नहीं अकर होना चाहिए. एंड इन दैट केस व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज यूनियन लेके दोनों रीजन्स, या तो ये या तो वो, सो आइदर दिस और दैट, दोनों रीजन्स का अपन यूनियन लेके आगे एडिशन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं. बट एडिशन थ्योरम अप्लाई करते वक्त इनका जब इंटरसेक्शन आता है तो वो इंटरसेक्शन नहीं है, वो जीरो है. सो यहां पे हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश. अब भी किया हम लोग ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए चाहिए उसमें से इंटरसेक्शन नहीं चाहिए, या तो फिर वी कैन गो फॉर ए डैश इंटरसेक्शन बी. ए डैश इंटरसेक्शन बी ये वाला रीजन है विच इज आउटसाइड ए बट इनसाइड बी. उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पी ऑफ बी ले लेंगे और इंटरसेक्शन हटा देंगे. So P of B minus P of A intersection B, and then when I put it together it becomes P of A plus P of B minus twice P of A intersection B. Yes, so that is the formula. इसमें से A चाहिए, A intersection B निकाल देंगे. Only A I want, here I want only B. So this is what comes out. So हम लोग के पास कहाँ से start हो रहा है? Look at the words also used, A और B. So A union B हो गया. फिर look at this, neither A nor B. ना तो A चाहिए ना तो B चाहिए. तो A dash intersection B dash हो गया, बाहर का region हो गया 1 minus P of A union B. और यहाँ पे हम लोग ने लिखा है कि A नहीं चाहिए, तो इट इज लाइक दिस ओनली, कॉम्प्लीमेंट्री टू A डैश. फिर हम लोग ने कैलकुलेट किया कि A चाहिए बट B नहीं चाहिए, तो दिस इज द रिजल्ट फॉर इट. यू टेक A, फ्रॉम दैट यू रिमूव द इंटरसेक्शन. फिर हम लोग ने कैलकुलेट किया, फाइनली दोनों में से कोई भी एक चाहिए, राइट? तो उसमें आता है या तो A चाहिए या तो B चाहिए, दोनों साथ में नहीं चाहिए. ये वाला रीजन सबट्रैक्ट करना है, एक बार A में से सबट्रैक्ट करना है, एक बार B में से सबट्रैक्ट करना है. आई वांट ओनली A, आई वांट ओनली B, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इट. ओके, सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज वेन डायग्राम व्हाइल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. हम लोग अभी 3 सेट पे जाते हैं, addition theorem of 3 sets. Okay, so यहाँ पे आपको अंदाजा लगाना है based on the words which they use while framing the question कि क्यों
यूनियन लेना है, क्यों इंटरसेक्शन लेना है, दैट यू हैव टू फिगर आउट while doing the sums. Okay, that's why I'm trying to help you out with the frequently asked things. Yeah, so we have A, we have B, and we have the intersection with C. So A हो गया, B हो गया, C हो गया. ठीक है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम लोग जाएंगे with the most commonly asked, either A or B or C occurs. इसको वो लोग ऐसे भी बोलते हैं, probability that at least one of the three occurs. अब एटलीस्ट वन मतलब वही हुआ, या तो ए, खाली ए, ओनली ए, या तो ओनली बी, या तो ओनली सी, या तो दोनों ए बी, राइट, या तो हम लोग बोल सकते हैं बी सी, या तो ए सी, या तो बोल सकते हैं ए बी सी, कोई भी रीजन आने दो, वी आर फाइन विद दैट. मिनिमम एक इवेंट होना चाहिए, दो भी हुआ साथ में तो भी चलेगा, तीन भी हुआ साथ में तो भी चलेगा. सो दैट इज व्हाट इज ए यूनियन बी यूनियन सी. एंड व्हेन आई से ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम लोग के पास फॉर्मूला है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला, विच इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी. सो एक बार ए लेंगे, एक बार बी लेंगे, एक बार सी लेंगे, फिर ये ए इंटरसेक्शन बी रीजन हम लोग ने पहले भी देखा है, अभी इसके पहले वाले एडिशन थियरम में देखा, ए इंटरसेक्शन बी एक बार ए के साथ काउंट होता है, एक बार बी के साथ काउंट होता है. तो हम लोग को एक बार वो रीजन सबट्रैक्ट करना होता है, फिर वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट बी इंटरसेक्शन सी, फिर एक बार हम लोग पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी भी सबट्रैक्ट करेंगे, राइट. अभी we are going to focus on this region, that is A intersection B intersection C, जो तीनों का इंटरसेक्शन है, उस रीजन की बात करते हैं. In this what happens is when I take ABC, it is counted once with circle A. तो जब मैंने P of A कैलकुलेट कर रहा था तभी मैंने उसमें A के साथ वो काउंट कर लिया था. आई एम फोकसिंग ऑन दिस रीजन. इसको मैंने एक बार बी के साथ भी काउंट किया था, एक बार सी के साथ भी काउंट किया है. फिर जब मैं ए इंटरसेक्शन बी सबट्रैक्ट कर रहा था तब वो सबट्रैक्ट भी हुआ है. फिर वापस जब मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबट्रैक्ट कर रहा था तो वापस उसमें भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबट्रैक्ट हो गया, विच इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन. तो पहले हम लोग को मालूम नहीं था, विदाउट आवर नॉलेज इट वाज इंक्लूडेड, नाउ विदाउट आवर नॉलेज इट इज आल्सो एक्सक्लूडेड. तो 3 बार इंक्लूड हो गया वो और 3 बार एक्सक्लूड हो गया, मतलब रियलिटी में एक भी बार काउंट हुआ ही नहीं है. एंड दैट्स व्हाई आई नीड टू इंक्लूड दैट रीजन नाउ, दैट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अलग से हम लोग को ऐड करना है. सो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, एंड देन वी हैव पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड. अब इसमें भी वो लोग वेरिएशन डाल सकते हैं. They might ask you find the probability that at least 2 of them occurs. At least 2 of the 3 events occur. Okay, तो 3 में से मिनिमम 2 होना चाहिए. तो हम लोग बोलेंगे A इंटरसेक्शन B लेना है. ओके, सो वी टेक P ऑफ A इंटरसेक्शन B. A एंड B दोनों साथ में अकर होगा. अच्छा, फिर हम लोग बोलेंगे B इंटरसेक्शन C लेना है. B एंड C दोनों साथ में अकर होगा तो चलेगा. 2 होना चाहिए, मिनिमम 2 होना चाहिए. फिर हम लोग बोलेंगे A एंड C अगर साथ में अकर हो रहा है चलेगा.
और तीनों अगर साथ में हुआ तो भी चलेगा, ABC तीनों हुआ. But see, again the problem is when I'm taking A intersection B, see when they say at least 2 or 3 occur, या at least 2 occur, at least 2 of the 3 occur या at least 2 occur ऐसा भी बोल दिया तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम 2 अकर होना चाहिए. तो AB हो सकता है, BC हो सकता है, AC हो सकता है, बट इसमें अगर तीनों साथ में अकर हुआ तो भी चलेगा, ABC भी चलेगा. So what I'm trying to do is I'm trying to include the regions where A occurs, B occurs, but C does not occur. तो exactly 2 will occur. फिर A does not occur, B occurs, C occurs. Exactly 2, B and C will occur, third will not occur. ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे A occurs, B occurs, B does not occur and C occurs. ये वाला जो रीजन है उसमें A occurs but B and C does not. ये वाला जो रीजन है इसका मतलब A does not occur, B occurs, C does not occur. और ये वाला जो रीजन है उसमें A does not occur, B does not occur, only C occurs. So here only A occurs. This is exactly 1. फिर यहाँ पे आएगा only B occurring. यहाँ पे आएगा only C. अभी आपको exactly 1 इवेंट के बारे में नहीं बोला, उन्होंने बोला 2 या 2 से ज्यादा. तो A B occurs, C does not, एक वो ले सकते हैं, ठीक है. A B occurs, A does not. तो चलो वैसे वहां से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं. So A B occurs, C does not. A does not occur, B and C occurs. We can take A and B and C, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि A and C occurs, this region. So we are including this region. Exactly 2, exactly 2, exactly 2, and more than 2. P of ABC. ऐसा ले सकते हैं, ठीक है. तो 2 अकर हुआ तो भी चलेगा, 3 अकर हुआ एक साथ तो भी चलेगा. अच्छा, अभी इसमें हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब ये डैश के फॉर्म में नहीं रखना है, स्टैंडर्ड में रखना है. तो स्टैंडर्ड में जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश चाहिए, खाली इतना चाहिए. तो आप बोल सकते हो ये पूरा रीजन जो है वो A और B का इंटरसेक्शन है, उसमें से ABC हटा दो. सो दिस फर्स्ट कैन बी टेकन एज A and B बोथ, बट ABC ऑल 3 एक साथ नहीं चाहिए. I repeat, this region combined is the region of A intersection B. Yes, बराबर है. So ये A intersection B region है, उसमें से हम लोग को A and B अकर होना चाहिए, C नहीं अकर होना चाहिए. तो what I'm doing is AB लिया, उसमें से ABC सब्ट्रैक्ट कर दिया. हाँ, ABC तीनों साथ में अकर होगा तो चलेगा, बट उसको मैंने अलग से लिया हुआ है ना, तो इसलिए यहां पे फिलहाल हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. सिमिलरली इफ यू want A dash intersection B intersection C region, you take B intersection C, from that you remove ABC. Similarly A intersection B dash intersection C, ये लेंगे, ये रीजन चाहिए तो आप A intersection C ले लो, उसमें से ABC निकाल दो. लास्टली हम लोग के पास है एक ABC ऑलरेडी एडेड, वो हम लोग लेके आता है. सो तीनों में से बारी बारी A इंटरसेक्शन B डिलीट करना है, एक A इंटरसेक्शन B बैलेंस हो जाएगा. तो फाइनली हम लोग को क्या मिल रहा है, A इंटरसेक्शन B, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे फॉर्मूला, तो B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A बोलो या A इंटरसेक्शन B C बोलो, एक ही है. एंड देन यू कैन से फिर भी हम लोग को 2 बार इसमें A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C एक्स्ट्रा काउंटेड है, वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. दैट इज व्हेन वी वांट एटलीस्ट 2 इवेंट्स टू अकर. फिर ऐसा भी बोल सकते हो लोग कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली
A occurs. I will use the appropriate word. Only A occurs. Only A occurs. So we are talking about A occurring जिसके साथ B और C intersect नहीं होना चाहिए. So it is this region we are talking about. Only A occurs. So from the circle of A, remove B, remove C. Okay. So how are we going to do that? P of A intersection B dash intersection C dash. So हम लोग इसको ऐसा सोच सकते हैं कि हम लोग को A के रीजन में से राइट A के रीजन में से B यूनियन C हटाना है, ऐसा हम लोग ले सकते हैं राइट. या तो फिर एक एक करके ये रीजन हटा देते हैं. C वी कैन से चलो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश हटाना है 1. फिर हम लोग को इसमें से A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C सबट्रैक्ट करना है 2. ओके, सो वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट A intersection B intersection C dash. We are going to subtract A intersection B intersection C. We are going to subtract A intersection B dash intersection C. ओके, ये हम लोग ने अभी भी लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डैश वगैरह नहीं चाहिए. सो लेट अस कम टू दिस नाउ. इसको भी आगे लेक्चर में किया हम लोग ने, आगे इस एग्जाम्पल में किया कि A इंटरसेक्शन B डैश का मतलब होता है इट इज AB. व्हेन आई से A इंटरसेक्शन B, आई कैन आल्सो राइट इन दिस फॉर्मेट, शॉर्टर फॉर्मेट में इट इज कॉल्ड एज AB, व्हिच इज A इंटरसेक्शन B. सो AB लेंगे, उसमें से ABC हटाना है. ओके, तो इसकी जगह पे मैं वो डाल दूंगा. यहां पे इसकी जगह पे व्हेन आई से A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग AC लेंगे और उसमें से ABC हटा देंगे. ओके, सो यहां पे आएगा AB C डैश चाहिए, तो AB में से ABC हट जाएगा. यहां पे आपको चाहिए AB डैश C चाहिए. सो यू टेक AC, उसमें से ABC हटा देंगे. सो क्या बनेगा हम लोग का फॉर्मूला यहां पे, लेट अस चेक दैट. सो हम लोग के पास आएगा P ऑफ A. हाँ, जब ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो यू आर गोइंग टू टेक माइनस P ऑफ AB प्लस P ऑफ ABC. ओके, यहां पे आएगा माइनस P ऑफ ABC. इसके लिए वापस, इसके लिए जब ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा, जब ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा, जब ये ब्रैकेट्स जो है वो ओपन होंगे आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, जब ब्रैकेट्स ओपन होंगे, नेगेटिव साइन अंदर जाएगा, तो यू गोइंग टू हैव माइनस P ऑफ AC प्लस P ऑफ ABC. So P of A minus P of AB plus P of ABC minus P of ABC minus P of AC plus P of ABC. So यहाँ पे हम लोग का minus P of ABC plus P of ABC एक cancel हो जाएगा. So finally what do we get here? I am writing it here. Finally हम लोग को मिलेगा P of A minus P of A intersection B minus P of B intersection C, sorry, A intersection C plus P of A intersection B intersection C. Yes, that will be the standard formula for only A occurs. I repeat, only A occurs में क्या करेंगे हम लोग, ये ले लेंगे, A ले लेंगे,
उसमें से फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, ए बी सी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी निकालना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश इज फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी यू रिमूव सी, सो फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी यू रिमूव दिस पार्ट विच इज देयर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो हटा देंगे। सिमिलरली इसके लिए ऐसा करेंगे कि ए इंटरसेक्शन सी लेंगे, उसमें से ए बी सी हटा देंगे, and then what we get is p of a, नेगेटिव साइन अंदर जाएगा, माइनस पी ऑफ ए बी प्लस पी ऑफ ए बी सी, माइनस पी ऑफ ए बी सी, एंड नेगेटिव साइन इसके अंदर जाएगा, तो माइनस पी ऑफ ए सी प्लस पी ऑफ ए बी सी, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट एट द एंड. So these are few examples where you can like this derive the formula and use it. Okay? ये सब हम लोग ने सेट थियरी में ऑलरेडी किया हुआ है. It is just a quick revision for that. So either A or B or C occurs. Words जैसा बनेगा at least 2 occur, minimum 2 occur होना चाहिए. Exactly A should occur, only one event A should occur. That's it. किसके यार इंटरसेक्शन नहीं चाहिए, सब इंटरसेक्शन डिलीट कर देंगे. We get this. ओके तो ये कुछ भी फॉर्मूला आपको सिवाय इसके याद नहीं रखना है, बाकी ऑन द स्पॉट डिराइव करना है. जैसे मैंने आपको केसेस लेके दिया और डिराइव करके दिया, वैसे ऑन द स्पॉट यू शुड बी एबल टू डिराइव. सो गो बाय द कॉन्सेप्ट, गो बाय द इवेंट डायग्राम. ओके, नन ऑफ द फॉर्मूला यू हैव टू रेक्टिफाई. ठीक है, वी आर गोइंग टू कवर सम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर.